اقرا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے اسلام جم خانہ میں ایک مشاورے کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا. کیا موضوع تھا اور کن کن لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا اس پروگرام میں؟ آج کا پروگرام خاص طور سے ہم نے جو منعقد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے، مسلمان بچے، ان کی ایک فکری تربیت اور ان کو دین کی طرف مائل کرنا، اور جو اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے، اباہیت کا ماحول اور بغاوت کا ماحول، اور اس میں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، فیملی نظام ہمارا ٹوٹ پھوٹ ہو رہا ہے سارا. جو اسلامی انسٹرکشنز ہیں ایک انسان کو صحیح انسان بنانا اور ایک صحیح بندہ بنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور ایک صحیح شہری بنانا، وہ تمام چیزیں قرآن اور احادیث کے مطابق ہیں. اور ہمارا جو پورا نصاب تعلیم ہے اس میں ہر چیز کی بہت وضاحت کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بچوں کو ایک کہنا چاہیے کہ اللہ کا بندہ جو ہوگا وہ ظاہر ہے کہ اللہ سے خوف خدا رکھے گا، تو وہ ہر چیز کو کہ جو غلط ہے، جو انسانیت کے لیے غلط ہے، جو سوسائٹی کے لیے غلط ہے اور نسلوں کے لیے غلط ہے، ان سب چیزوں پہ پابندی لگانا اور اس کو اچھے سے ڈیل کرنا. اور یہ کام ہم خاص طور سے اس کو جو ایک نئی نہج دے رہے ہیں وہ یہ کہ ہم بچوں کو پریشر ڈال کے یا ڈوز اینڈ ڈونٹس کی طرح سے نہیں، بلکہ ہم بہت اچھے ماحول میں ان کو ریوارڈز کے ساتھ یہ باتیں بتائیں تاکہ وہ اچھے انسان بنیں، اچھے اللہ کے بندے بنیں. جو یہ بک آپ نے ڈیزائن کی ہے یہ عام اسکولوں تک یا ان بچوں تک کیسے پہنچے گی یہ بکس؟ ہم ایک ایپ بنا رہے ہیں اور ایپ کے تھرو ہم یہ جو کوئی کوئز کانٹیسٹ رکھ رہے ہیں، اس میں سوالات ہوں گے، اس میں وقت دیا جائے گا بچوں کو، اور اس کے بعد یہ گھروں تک کتابیں پہنچیں گی، بچے پڑھیں گے، بچے کیا بڑے بھی پڑھیں گے اور گھر کا ہر فرد پڑھے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ پڑھیں ان کو، اور اس کے بعد پھر ان کو 200 اسکولوں میں ابھی اقرا کا کریکولم چل رہا ہے ہندوستان بھر میں. اقرا کے ذریعے سے آپ جو ہے چلڈرن، جو بچے اور یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے، خاص کر آج کے جو ماحول چل رہا ہے اس کو لے کر کے؟ میرا خاص میسج بچوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جس ماڈرن دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. اب جو ان ڈیٹڈ ہے، اور اس وقت جو بالکل ایڈوانس اور ماڈرن چیز ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام کی طرف لوگ بہت تیزی سے آ رہے ہیں. تو جو لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں یا اسلام سے دور ہونا چاہ رہے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور وہ گڑھے میں گر جائیں گے. ان کو بعد میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے بہت کچھ کھو دیا، کیونکہ جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں وہ فلاح کی طرف آ رہے ہیں، کامیابی کی طرف آ رہے ہیں، ترقی کی طرف آ رہے ہیں. اور اسلام ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے، فائنانس کو ایڈریس کرتا ہے، اخلاق کو ایڈریس کرتا ہے، گھریلو زندگی کو ایڈریس کرتا ہے. ہر چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے. تو جو نہیں پڑھتے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنا خاندانی نقصان کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. آئیوا میں جو بھی ہنرمند خواتین ہیں، اور سب کو آتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ آتا ہے، ہمارے پاس سب چیزوں کے آپشنس ہیں الحمدللہ، اور ان کو ہم گائیڈ لائنس دیتے ہیں، گروپ بناتے ہیں. سنگل وومن سے ساتھ نہیں کام کرتے. ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ وہ سیلف ہیلپ گروپ بنا کے کام کریں، جو گورنمنٹ کے بھی جس میں اسکیمیں ہیں اور اس سے ان کو مدد ملتی ہے. اور جو بھی پروڈکٹ وہ بناتی ہیں تو اس میں وہ اس کا کہنا چاہیے مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بلک لیول پر ہو، پھر اس کے بعد اس کا کیا کہتے ہیں پروڈکشن جو ہے وہ ایک ساتھ میں ہو، اور اس کے بعد اس کی سیلنگ بھی ایک ساتھ ہو، تو وہ بڑے لیول کا کام ہوتا ہے. تو آئیویا کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گروپ کو ایک ساتھ ایک پروڈکٹ ایک گروپ کو دیں اور اس کو کھڑا کریں. سلمان بھائی صاحب، جس طرح سے یہ آن لائن اسلامک کوئز کانٹیسٹ آپ نے رکھا ہے یا رکھتے جا رہے ہیں، تو یہ اس کا دائرہ کتنا بڑا ہوگا؟ مہاراشٹر لیول پہ ہوگا یا آل انڈیا لیول پہ ہوگا؟ ابھی یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے جو صرف مہاراشٹر کے لیے، اور مہاراشٹر میں بھی صرف ایک سرٹن ایریا میں، پورا مہاراشٹر بھی ہم یہ کور نہیں کر سکتے. تو اس کے سکسیس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دوسرے اسٹیٹ میں بھی جائیں گے، اور پھر ایک آل انڈیا لیول پہ ہمارا کرنے کا پروگرام ہے. لیکن یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے، چھوٹا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر بھی ہم تقریباً 15 سے 20 ہزار بچے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پارٹیسپیٹ کریں گے. کیا عمر کے ہوں گے وہ؟ یہ ہر عمر کے ہوں گے. ہر عمر کے؟ جی ہاں، جیسے انہوں نے ہاں یہ کہ ہو سکتا ہے دونوں طلباء طالبات دونوں، ٹیچرس اور پیرنٹس بھی. اچھا، وہ ان کو بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے، وہ بھی کر سکتے. ان کے پرائز الگ ہوں گے. آپ نے جیسے دیا فور چلڈرن اینڈ یوتھ،
तो मैं बता रहा हूँ ना कि 3 लेवल पे बच्चे हैं, जी प्राइमरी लेवल है, जूनियर लेवल है, सीनियर लेवल, हाई स्कूल लेवल तक। जो हाई स्कूल लेवल का प्रोग्राम है उसमें एडल्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पेरेंट भी कर सकते हैं। उनके इनामात अलग होंगे, पेरेंट्स के, टीचर के इनाम अलग होंगे। स्टूडेंट में लड़कियों के अलग होंगे, लड़कों के अलग होंगे। जो लड़कों को दे रहे हैं वही इनाम लड़कियों को भी दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर जो उम्रा को जा रहे हैं, तो ये नहीं कि टॉप में अगर लड़का आ रहा है तो लड़की को, या लड़की आ रहा है तो लड़की को, नहीं, टॉप में जो लड़का होगा उसको भी इनाम मिलेगा, लड़की होगी उसको भी इनाम मिलेगा। सर आप लोग ये जैसे ऑनलाइन हो रहा है जी, एग्जाम, तो इसमें जजेस कौन होंगे, शफाफियत कितनी होगी, इसमें कैसे पता चलेगा कि पूरा कंप्यूटराइज है हमारा। हमने मैनुअल कुछ रखा ही नहीं इसके अंदर, पूरा कंप्यूटराइज है। क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो करेक्ट आंसर करेगा तो कंप्यूटर खुद ही हमें रिजल्ट बता देगा किसने कितना सही आंसर दिया है। तो हमारा मैनुअल इसमें कुछ है ही नहीं, पूरा टोटली कंप्यूटराइज है ये। कितना पीरियड होगा, इसका दायरा कितना होगा, टाइमिंग एक हफ्ते का होगा, 15 दिन? नहीं, ये तो टेस्ट तो एक ही दिन होगा बस, एक ही दिन टेस्ट होगा। और वो अभी हमने टाइम डिसाइड नहीं किया, लेकिन 1 घंटा या 1.5 घंटे का होगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं हमारे, तो आधे घंटे के 3 हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देंगे। उनको सिर्फ क्लिक करना है कि 3 या 4 ऑप्शन है, उसमें राइट आंसर को क्लिक कर दीजिए आप। मुफ्ती साहब, आज खुशावती मीटिंग में बहुत सारी टीचर्स असातिज़ा यहाँ पर आए थे। आप कैसे देखते हैं, क्या दीनी एतबार से भी ये सारी चीज़ें घर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है? नहीं, माशाल्लाह आज की इस मीटिंग में मुझे जो महसूस हुआ कि जो असातिज़ा और एजुकेटर्स और स्कूल के ज़िम्मेदारान, कॉलेज के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद थे, सब काफ़ी कुछ हसास हैं लोग मौजूदा हालात को देखते हुए, और इंशाअल्लाह इसका बहुत बेहतर फ़ायदा और बेहतर नताइज इसके बरामद होंगे। और इंशाअल्लाह ये क्विज़ का सिस्टम जो होगा, इससे एक अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम जाएगा। मुफ्ती साहब, जैसे आपने अपनी तकरीर में ईमानियात की बात की जी, और इस पर ख़ास तौर से आपने बहुत तवज्जो मरकूज़ की, इसकी ख़ास वजह क्या है? असल में ईमान ही बेस है, ईमान ही बुनियाद है, और ईमान ही की बुनियाद पर आमाल मुरतब होते हैं। जितना इंसान के अंदर ईमान रचा बसा रहेगा, अल्लाह की अज़मत का एहसास होगा, अल्लाह की मोहब्बत का एहसास होगा, उसी कदर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फर्माबरदार बनेगा, इताअत गुज़ार बनेगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मक्की ज़िंदगी में सिर्फ़ ईमान पर मेहनत हुई और आखिर में जाकर नमाज नाजिल हुई। उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ ईमान पर और अदल व इंसाफ, मुसावात और अखलाकियात पर मेहनत की है, और आमाल का सिलसिला जो हमारे यहाँ ज़्यादा अहमियत रखता है वो बाद में शुरू हुआ है। तो बहरहाल ईमान ज़्यादा अहम है, और जो चीज़ ज़्यादा अहम है उसको उसी एतबार से अहमियत दी जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर फ़राइज़ और नवाफिल हैं तो फ़राइज़ को ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, नवाफिल को उसके मुकाबले में कम अहमियत दी जानी चाहिए। अगर कोई नवाफिल को ज़्यादा अहमियत देता है, सुनन को ज़्यादा अहमियत देता है और फ़राइज़ को अहमियत नहीं देता है, तो ये बिल्कुल बकौल एक आलिम दीन के ये फ़िक्री बिदात है। इसको इल्तिज़ाम माला यल्ज़म कहते हैं, गैर ज़रूरी को ज़रूरी समझना या ज़रूरी को गैर ज़रूरी समझना। और इस्लाम में बिल्कुल डिफ़ाइन किया हुआ है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें कम ज़रूरी हैं। हम लोग जो है खलत मलत के शिकार हो गए हैं, और हमको उसी तरह से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। ईमान को हम सबसे ज़्यादा अहमियत दें, और उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत अल्लाह की ज़ात की, अल्लाह की अज़मत को, आखिरत के तसव्वुर को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, और उसके बाद बाकी चीज़ों को हम अहमियत दें। तो ईमानियात को सबसे ज़्यादा हमें अहमियत देना है, बाद में आमाल को। मुफ्ती साहब, आप जैसे कि मुफ्ती हैं, आपने अपनी लड़कपन, अपनी जवानी मदरसों वगैरह में गुजारी है। जिस तरह से इकरा कुछ दीनी तालीम को लेकर अपनी बुक्स लॉन्च कर रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो किताबें लॉन्च हो रही है, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या बच्चे इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे? नहीं, बेशक ये किताबें बहुत ही बिल्कुल बहुत ही उम्दा हैं, बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक हैं, और जिस तरह से ईमानियात को और अखलाकियात को इन किताबों में पेश किया गया है, बस शर्त यह है कि टीचर्स अच्छे से पढ़ाएं और उसको बाकायदा जगह स्कूलों में दी जाए और माहौल ऐसा बनाया जाए, तो इंशाअल्लाह बहुत इसका फ़ायदा होगा, और हमारे बच्चों में ईमान, दीन, अखलाकियात और जो इस्लामी शऊर है इंशाअल्लाह पैदा होगा।
अलैकुम। अंजुमन इस्लाम बदवीन तैयब जी हाई स्कूल CSMT की मैं HM हूँ और अंजुमन से सब मुतारिफ़ है। अंजुमन कोई ऐसा अदारा नहीं जिससे कोई वाकिफ़ ना हो। और आज इकरा का जो प्रोग्राम रखा गया उसमें हमारे अंजुमन इस्लाम की तमाम प्रिंसिपल्स और उनके स्टाफ मौजूद रहे। शुरुआत से ही हम लोग सब ये हमतन गोश रहे कि यहाँ से हम कुछ नया सीखे जाएंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे मसाइल जो तमाम मुसलमान फ़ेस कर रहे हैं आज के ज़माने में, उन सब का हल इस्लाम की तालीमात के ज़रिए यहाँ बताया गया। हिजाब के बारे में और बच्चों की तरबियत के बारे में, खुसूसन गर्ल्स और बॉयज़ जो हमारी नई नस्ल के लोग जो हैं वो किस तरह से अपने इस्लाम से दूर हो रहे हैं मॉडर्न के ज़माने में, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। और ये सब बताया गया और इसकी बुक्स वगैरह भी जो है वो जो बेसिक है जिससे तमाम मसलक के लोग उसको पढ़ सकते हैं। उसका मसला का मसला नहीं आएगा, ये हम अपने ऊपर है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह करें। हमने कहा है कि जो इसके बेसिक मसाइल हैं जो हमारे मुसलमानों के हैं जिससे किसी भी मसलक को कोई भेद ना होगा, वो तमाम जो है अंजुमन के जो से स्कूल्स हैं, कैंपस है, वहाँ तक पहुँचाई जाए। इसमें हमारा स्कूल ताउन करेगा और इसके लिए हम जो है अपने प्रेसिडेंट से रुजू करेंगे ताकि ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता रहे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुमन इस्लाम अब्दुल सत्तार शोएब प्राइमरी की हेड टीचर हूँ। यहाँ पर हमारे इस्लामी जमखाना में हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई जो आजकल की ज़रूरत है दीन से जोड़ते हुए, और किस तरह से वालिदा अगर बच्चों की तरबियत सही करती है तो वो बच्चे आगे जाके कुछ गलत राह पे नहीं जाएंगे। आज के ज़माने की जो मांग है उससे हमें आगाह किया गया, बताया गया किस तरह से हम हमारे प्रेसिडेंट सर के साथ में हमारी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, वालिदैन, बच्चों के साथ और तमाम मेंबरान की मदद के साथ किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे मुल्क में हमारे मज़हब इस्लाम से जो ताल्लुक़ रखने वाले हम लोग हैं किस तरह के मसाइल से दो चार हो रहे हैं उसका हल भी हमें बताया गया। तो मैं चाहती हूँ हमारे प्रेसिडेंट सर पद्मश्री ज़हीर काजी साहब जिस तरह हमें यहाँ भेजा, वो आगे भी कुछ जो प्रोग्राम ये टीम रखती है तो हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।